बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम class. In today's lecture, we are going to complete the remaining translation of first year at Harrow. Before starting the lecture, let's have a brief review of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed the first three paragraphs of the first year at Harrow, written by Sir Winston Churchill, who remained Prime Minister of England from 1940 to 1945 and again from 1951 to 1955. In this essay, Sir Winston Churchill described his own disliking for the examination. In fact, इस essay में Sir Winston Churchill हमें क्या बता रहे हैं कि as a student in the beginning he was not a brilliant student. That's why he didn't like the examinations. वो इम्तहानात को पसंद नहीं करते थे और इनकी उन्होंने कुछ रीज़न्स दी हैं. इसमें एक इम्पोर्टेंट रीज़न जो उन्होंने डिस्कस की है वो ये है कि ही वांटेड टू एग्जाम इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसेस, बट द एग्जामिनर्स लाइक्ड ग्रीक एंड लैटिन. इट मीन्स कि जिन सब्जेक्ट्स में सर विंस्टन चर्चिल इम्तहान देना चाहते थे, जो एग्जामिनर्स थे उन सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते थे. And therefore, Winston Churchill never performed well in his examination. And in the second paragraph, in the previous lecture, we discussed his complete failure in the Latin paper in the entrance test for Harrow. कि हैरो में जब उनका एडमिशन टेस्ट लिया गया तो उन्होंने उस एडमिशन टेस्ट में किस तरह परफॉर्म किया. He has discussed in detail in the second paragraph of this essay. In today's lecture, we are going to discuss that how Mr. Somervell, the English teacher, taught Sir Winston Churchill and other dull boys. And also we shall discuss that his knowledge of English proved very fruitful in his practical life. Okay, let's start today's lecture. We have completed the translation of the first year at Harrow till some other cause, and today we'll start from the fourth paragraph of this essay. I continued in this unpretentious situation for nearly a year. Sir Winston Churchill says that I continued in this unpretentious situation for nearly a year. कि मैं तकरीबन एक साल तक इस मामूली सूरत हाल में पढ़ता रहा. However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the cleverer boys. ताहम निचले तरीन तबके में इतना ज़्यादा अरसा रहने से मुझे ज़हीन तर लड़कों पर बेपना बर्तरी हासिल हो गई. They all went on to learn Latin and Greek. वो सब लातीनी और यूनानी and splendid things like that, और इस तरह की बहुत सारी शानदार चीज़ें सीखते रहे. But I was taught English, लेकिन मुझे इंग्लिश सिखाई गई. We were considered such dunces that we could learn only English. कि हम इतने बुद्धू और अहमक समझे जाते थे कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी ही सीख सकते थे. Mr. Somervell, a most delightful man, to whom my debt is great, was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. Mr. Somervell, a most delightful man. Who was Mr. Somervell? Mr. Somervell was the English teacher of Sir Winston Churchill and a most delightful man. He was a very pleasant man. He was a very happy man.
टू होम माई डैट इज़ ग्रेट, जिनके लिए सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि माई डैट इज़ ग्रेट, कि वो एहसानमंद रहेंगे, वॉज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, कि मिस्टर समरवेल को ये ड्यूटी दी गई कि स्कूल में जो डल स्टूडेंट्स हैं उनको वो सिखाएं, उनको वो क्या सिखाएं, द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, कि उनको जो इंतहाई हकीर एक चीज़ है जिसको वो उस वक़्त इंग्लिश कहते थे, कि सिर्फ इन बच्चों को क्या सिखाना है, इंग्लिश लिखना. In sentences, the students you can judge that in those days the status of English was not very high as we have today, and he knew how to do it. और वो जानते थे कि इसको किस तरह से करना है. He taught it as one else has ever taught it. उन्होंने इसे इस अंदाज में पढ़ाया कि किसी और ने इसे कभी भी इस अंदाज में नहीं पढ़ाया होगा. Not only did we learn English passing thoroughly, but we also practiced continually English analysis. कि हम न सिर्फ ग्रामर के लिहाज से सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करना हमने मुकम्मल तौर पर सीख लिया, इसके साथ साथ इंग्लिश के तज्ज़िये की मशक भी हम मुसलसल करते थे. मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन. मिस्टर समरवेल का पढ़ाने का अपना एक निज़ाम था. ओके स्टूडेंट्स, इन लाइंस में जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर जो सर विंस्टन चर्चिल हैं, जब उनको लोएस्ट क्लास में एडमिशन मिल गया तो उस टाइम हैरो में क्या था कि जो डल स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाई जाती थी और ब्रिलियंट स्टूडेंट को ग्रीक एंड लैटिन. तो मिस्टर सर विंस्टन क्या एक्सप्लेन करते हैं कि उनको इस तरह से लोएस्ट क्लास में एडमिशन मिलने का उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ, क्योंकि उनको इंग्लिश सिखाई गई और इंग्लिश जो थी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में. इसके बाद वो अपने इंग्लिश टीचर के बारे में हमें बताते हैं कि जिनका नाम क्या था, मिस्टर समरवेल, और उनको ही हाईली अप्रिशिएटेड मिस्टर समरवेल. वो कहते हैं कि उनके पढ़ाने का जो अंदाज़ था इट वाज ग्रेट, और उनसे पढ़ने के बाद ही लर्नड इंग्लिश थारोली. नाउ नेक्स्ट लाइन, ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस. ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, कि मिस्टर समरवेल जो थे वो एक लंबे सेंटेंस को लेते एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और उसको उसके पार्ट्स में तकसीम करते बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स. स्याह, सुर्ख, नीली और सब्ज़ स्याही के साथ. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, relative clauses, conditional clauses, conjunctive and disjunctive clauses. Each had its color. हर हिस्से का एक अपना रंग होता, and its bracket, और उसकी अपनी ब्रैकेट होती. It was a kind of drill, कि ये एक किस्म की वो मशक थी. We did it almost daily. सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि मिस्टर समरवेल जो इस तरह की एक्सरसाइज थी कि इंग्लिश को जो सिखाने का उनका जो मेथड था इट वाज वेरी यूनिक, कि वो क्या करते, वो एक इंग्लिश का एक लंबा सेंटेंस लिखते बोर्ड पर, उसके बाद वो उस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोनेंट वो उस सेंटेंस को ब्रेक करते, और वो इसको डिवाइड किस तरह से करते, वो डिफरेंट कलर्स की इंक यूज़ करते कि अगर उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट को एक कलर में, ऑब्जेक्ट को एक कलर में, उसके रिलेटिव जो क्लॉजेज होते उनको कोई और कलर देते, और इस तरह से वो पूरे के पूरा जो सेंटेंस होता उसको अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोनेंट वो डिवाइड कर देते थे. और सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रिल, कि ये वो मशक करवाते थे एंड इट वाज देयर डेली प्रैक्टिस. एज इट रिमेन इन द थर्ड 3 times एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स. जैसा कि मैं तीसरे दर्जे में किसी भी और लड़के की निस्बत 3 हिस्से ज़्यादा अरसा रहा,
आई हैड 3 times as much of it, तो मुझे इस पर 3 गुना ज़्यादा महारत हासिल हो गई थी। आई लर्न इट थारोली, मैंने उसे मुकम्मल तौर पर सीखा। दस आई गॉट इन टू माई बोन्स द इसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डनरी ब्रिटिश सेंटेंस विच इज़ अ नोबल थिंग। दस आई गॉट इन टू माई बोन्स के चनाचे एक ये चीज़ मेरी हड्डियों में रच बस गई। द इसेंशियल स्ट्रक्चर, जो एक बुनियादी साख थी ऑफ द ऑर्डनरी ब्रिटिश सेंटेंस, कि जो बरतानवी सेंटेंस की एक जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था वो उन्होंने थारोली उसको लर्न कर लिया। एंड व्हेन इन फॉर आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज हु हैड वॉन प्राइजेज एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग सच ब्यूटिफुल लैटिन पोइट्री एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स had to come down again to common English. In the end of the essay, Sir Winston Churchill describes, and when in after years, और जब आने वाले सालों में my school fellows, जो मेरे स्कूल के साथी थे, who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poetry, कि जिन्होंने उस वक़्त प्राइजेस जीते खूबसूरत लातीनी शायरी में एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, और बहुत ही कम्पैक्ट जो ज़रबुल इमसाल यूनानी लैंग्वेज में लिखी, हैड टू कम डाउन, उन्हें वापस आना पड़ा अगेन टू कॉमन इंग्लिश, आम इंग्लिश को सीखने के लिए, टू अर्न देयर लिविंग अपनी रोज़ी के लिए, और मेक देयर वे मीन कि in order to get success in their life. I didn't feel myself at any disadvantage. उस वक़्त सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि मुझे किसी भी किस्म का जो नुकसान है उसका एहसास नहीं हुआ। इन लाइंस में आपने क्या देखा कि जब सर विंस्टन चर्चिल ने हैरो में एडमिशन लिया तो उस टाइम इंग्लिश का स्टेटस इतना हाई नहीं था, बट जैसे जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो उस वक़्त इंग्लिश जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेटस गेन कर चुकी हुई थी। तो उस वक़्त उनके वो दोस्त जिन्होंने ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज सीखी और उनमें दे वॉन प्राइजेस एंड आल्सो दे वॉन डिस्टिंक्शन, उन स्टूडेंट्स को अपनी डेली अर्निंग के लिए एंड अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव करने के लिए दे हैव टू लर्न इंग्लिश। नेचुरली, कहते फितरी बात है, आई एम बाइस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखने वाले लड़कों की हमायत में तरफदार हूँ। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं इन सबको इंग्लिश सिखवाऊँगा। एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज एन ऑनर, और फिर मैं उन ज़हीन लड़कों को जो कि लतीनी ज़बान को एक एजाज़ के तौर पर सीखते थे उन्हें इजाज़त दूंगा, एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, और जो यूनानी ज़बान को तफरीह के तौर पर सीखते थे। बट द ओनली थिंग आई वुड विप देम फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, लेकिन कहते हैं कि एक काम मैं ज़रूर करूँगा कि उन स्टूडेंट्स को मैं मारूँगा कि उन्होंने अंग्रेज़ी को क्यों नहीं सीखा। आई वुड विप देम हार्ड फॉर डैट, और मैं उनको इस काम के लिए बहुत ही सख्त सज़ा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed the translation of first year at Harrow. Let's discuss the important synonyms of these paragraphs. I have underlined the important words. Let's discuss the meanings of these words. The first word in today's lecture is unpretentious. It means simple, plain, ordinary and humble. The next word is splendid. It means शानदार, बहुत ही नुमाया, and the synonyms are excellent and wonderful. Dunce, ahmak,
foolish, idiot, ass, dull. Debt, it means ehsan, and synonyms are thankfulness and gratefulness. Disregarded, मामूली, बहुत ही अदना चीज़. It means insulted, humiliated and abused. The next word is parsing. It means पहचान करना, grammatical description of a word. Thoroughly. Thoroughly mean मुकम्मल तौर पर, completely and wholly. Components, अज्जा, forming parts of something, किसी भी चीज़ के हिस्से. The next word is structure. Structure means ढांचा, form, शक्ल. The next word is epigram. It means short and pointed sayings. Bias. Bias, it means tang nazri, taasub, and the synonyms are have a tendency to favor something. Treat, it means thing that gives great pleasure, ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हो. Okay student, we have completed the translation of First Year at Harrow. आप लोगों ने इसको once again इसकी रीडिंग करनी है, इसकी थारो रीडिंग करनी है, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स जो हैं अच्छी तरह से वो लर्न करने हैं. ओके, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ईडियम्स डिस्कस किए थे. आई थिंक वी हैव डिस्कस द फर्स्ट 13 ईडियम्स, और मैंने आपसे कहा था कि अब आपकी क्लास में डेली वी विल डिस्कस द ईडियम्स. इन टुडेज लेक्चर वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 14. बैड डेट. इट मीन्स a debt that is unlikely to be paid. ऐसा कर्ज जो आपको वापस ना करे कोई. He will not pay you back. It is a bad debt. A bad egg. A bad egg. Bad का मीनिंग क्या होता है? बुरा. Egg mean अंडा. A bad egg means spoiled egg. It means it is used for a person who is completely worthless. कि जो बिल्कुल बेकार शख्स होता है उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज़ करते हैं? We use a bad egg. I do not like Smith as he is a bad egg. The next, bag and baggage. With all one's belonging, with all one's equipment. साजो सामान के साथ. Bag and baggage, सामान. He threw her out of the house, bag and baggage. कि उसने उसको अपने घर से उसके सारे सामान के साथ बाहर निकाल दिया. Bear fruit. Have the desired result. His efforts bore fruit and he passed the examination at last. कि उसने जो efforts की थी उनका उसको फल मिल गया और at last he passed the examination. Beast of burden. Beast of burden, it means an animal that does heavy work. ऐसा जानवर जो कि मुश्किल काम करता है. A true leader of a nation has to work like a beast of burden. कि किसी भी कौम का ट्रू लीडर वो है जो कि like beast of burden काम करे. The next is beat about the bush, beat around the bush. इधर उधर की बातें करना, यूजलेस बातें करना. Stop beating about the bush and come to the point.
नेक्स्ट इज बीट द एयर, टू मेक रिपीटेड फ्यूटाइल अटैम्प्ट्स, मुसलसल कोशिश करना बट यूजलेस एफर्ट करना, आप कोई भी जो एफर्ट है आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही। टू ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन इज़ लाइक टू बीट द एयर, अगर आप इम्तिहान को पास करने की कोशिश करें लेकिन आप मेहनत ना करें तो इट मीन्स आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। A bed of roses, life is not a bed of roses. A bed of nails, life is a bed of nails. The next is bell the cat. Bell घंटी बजाना, cat बिल्ली को, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कि बहुत ही मुश्किल काम यह है। टू एंडेंजर वन सेल्फ और अदर्स, कि दूसरों के लिए अपने आप को खतरे में डालना। हु विल बेल द कैट बाय रिपोर्टिंग अगेंस्ट हिज डिसऑनेस्टी, कि इसकी जो बदयांती के बारे में बताकर बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, कौन है जो ऐसा करेगा। 24 नंबर 24 पे है आपका बिलो द बेल्ट और हिट बिलो द बेल्ट, इट मीन्स अनफेयर, क्रूअल, नामुनासिब। यू नो इट इज़ बिलो द बेल्ट टू चीट अ फ्रेंड, कि किसी भी दोस्त को धोखा देना ये बहुत ही नामुनासिब हरकत है। बीनीथ वंस डिग्निटी बिलो वन वर्थ, शान के खिलाफ, स्टेटस के खिलाफ। इट इज़ बिलो योर डिग्निटी टू डिसओबे योर टीचर, कि ये आपकी शान के खिलाफ है कि आप अपने टीचर की जो बात है उसको ना मानें। ओके स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर वी completed the translation of first year at Harrow and also we discussed the idioms from 14 to 25. Okay, enough for today. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वंस अगेन आप लोगों ने रीडिंग करनी है फर्स्ट ईयर एट हैरो की, डिटेल रीडिंग करनी है आपने, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जिनको मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है उनके मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स आप लोगों ने लर्न करने हैं, और ईडियम्स जो है ये भी आप लोगों ने लर्न करने हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।